Assalamu alaikum, my dear students. Today we are going to discuss another topic. This is a poem after apple picking by Robert Frost. We will discuss text-based questions under the title discussion. Let's take its first question. The poem is rich in symbols that refer to simple everyday things but have a deeper significance. The poem opens with mention of the ladder is kicking through a tree or towards heaven still, which refers to the poet's preoccupation with his death. Similarly, there are a number of symbols used in the poem. Read the poem once again and try and find these symbols. Make a list of them and share it with your partner. Here are a few to get you started. Try and guess what these objects symbolize. Apples, barrel, ladder, swaying. Let's discuss it is what the question demands from us. क्वेश्चन जो हमें कह रहा है कि हमें क्या करना चाहिए वो ये है कि कुछ सिम्बल्स पोइट ने इस्तेमाल किए हैं अपनी पोएम में. आप पेज नंबर 75 और 76 को खोलिए, वहाँ पर फुल पोएम दी गई है. पोएम को आप बिल्कुल वहाँ देख सकते हैं लाइन बाय लाइन, और वहाँ कुछ सिम्बल्स जो मैं यहाँ पढ़ के आपको बताऊँगा दिए गए हैं. मिसाल के तौर पर एप्पल्स है, बैरल है, लेडर है, स्वेइंग है. इनका क्या मतलब निकल सकता है, ये पोएम ने वहाँ से ही दिए गए हैं कुछ सिम्बल्स, और हमें और सिम्बल्स के बारे में लिखना है कि कौन कौन से सिम्बल पोएट ने इस्तेमाल किए हैं. इन सिम्बल्स को इसका लेने का क्या मतलब है. Let us discuss them. And the first symbol that we're going to analyze is apple picking. Apple picking means completely any task in life that you're going to perform with your hard labor, with devotion, with endeavor and efforts. जो भी चीज़ आप हासिल कर सकते हैं अपनी कोशिश से, अपने लगन से, अपने दिलचस्पी से, और इसमें क्या चाहिए कि इसमें हमें बड़ी जद्दोजहद की ज़रूरत है, मेहनत की ज़रूरत है. नेक्स्ट इज़ विंटर स्लीप. Winter sleep means it is a state of inactivity or state of death. इस दुनिया में जब हम काम करते हैं 10 साल, 20 साल, 30 साल, 50, 60, 100 साल तक, उसके बाद एक मोड आता है जब हमारा जिस्म एक स्टेट में पहुंच जाता है जिसमें हम इनएक्टिव स्टेट कहते हैं, या स्टेट ऑफ डेथ, जब अब कुछ काम नहीं कर सकते हैं. इस सिंबल का यही मतलब हो सकता है. नेक्स्ट इज ड्रीमिंग. ड्रीमिंग इज इट रिलेट्स टू विजन. इट रिलेट्स टू एस्पिरेशन. What you are going to achieve in future. It means desiring, or it means your ambitions. ये आपकी चाहत के मुतलिक है. जब आप सोचते हैं, ख्याल करते हैं, तो सीधी बात है आप वो चीज़ सोचेंगे जिस चीज़ की आपको आरज़ू होगी, चाहत होगी, या जिसका आप अज़म रखते हैं, इरादा रखते हैं. एंड नंबर 4 इज़ हार्वेस्ट. हार्वेस्ट मीन्स जब भी कोई
काम हम करते हैं, मेहनत करते हैं, उसका हमें उसके सिले का हमें इंतज़ार रहता है. When we are doing a job, when we are giving 100% by our hard labor, and in the end we expect better result, we expect it is reward, and this reward can be the harvest, and harvest is in reward of an effort. Now these were some symbols besides those symbols which are given at the end of the question. And apple picking, winter sleep, dreaming, harvest, you can see, you can add some other symbols like this, which you can judge why the poet has used these symbols and what should be the real meaning by using those symbols in the poem. Question number 2 is, look at rhyme scheme of the poem. What's it like? Has the poet done it intentionally? Rhyme scheme को हमें देखना है, ये किससे मुताबिकत रखती है, और पोएट ने क्या इस राइम स्कीम को जानबूझकर इस्तेमाल किया है, या ये एक वाक़या था जिससे पोएट ने जिसकी वजह से ये राइम स्कीम अमल में आई है. जब हम पोएम को देखते हैं कि there is a variation in the rhyme scheme in this poem. For example, जब हम पोएम पढ़ते हैं तो पहले ट्री है, सिटिल, फिल एंड थ्री, देन bow, now, night and off, and sight, glass, tough and grass, and likewise. तो इस राइम स्कीम जब हम इसको पढ़ लेते हैं तो हम कह सकते हैं कि दिस इज़ अ वेरी unique, there are unique repetitions of words in the form of rhymes. One should say it is in a cantatory, जैसे कोई यानी मंत्र पढ़ने के और फूंकने के अंदाज जैसे इस पोएम में है, इस चीज़ को हम वहाँ देख सकते हैं. The poet perhaps wants to suggest that the poem need not to be in an orthodox way. ये जो रिवायती अंदाज में पोइट्स लिखे जाते हैं, पोइट ने शायद ये देखा है कि इसको ऐसे अंदाज में ना लिखा जाए, ना इसे तरतीब दिया जाए. And it admits several interpretations. इन्हें बहुत सारे आप इस चीज़ को इसके लिए आप आर्गुमेंट्स दे सकते हैं कि क्यों ये राइम स्कीम है, क्यों ऐसी लिखी गई है, पोइट का क्या इस के पीछे क्या मतलब मुद्दा होगा पोइट का. And question number 3 is, what is the pane of glass refer to? What's the poetic device used in this description? पैन ऑफ ग्लास, सीधी सी बात है, पोएम में हमने पढ़ा ये कवरिंग ऑफ स्नो के बारे में है. इसका मतलब यह है कवरिंग ऑफ स्नो, जो बर्फ़ की वो एक तह जम जाती है ज़मीन पर, पूरी ज़मीन कवर हो जाती है,
इसको पोइट ने पैन ऑफ ग्लास से ताबीर किया है। एंड द कवरिंग ऑफ स्नो looks like the glass of a window pane, and when we put it into a poetic device, we can conclude that this poetic device is nothing but a metaphor. ये एक मेटाफर हो सकता है, implied simile, ये चीज़ पोइट ने वहाँ इस्तेमाल की हुई है। क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाई हैज़ द वर्ड थाउजेंड बीन रिपीटेड ट्वाइस? व्हाट्स द पोएटिक डिवाइस यूज्ड हियर? व्हाई हैज़ इट बीन यूज्ड? ये जो थाउजेंड पोइट ने किया है 2 मरतबा रिपीट, पोएटिक डिवाइस कौन सा पोएटिक डिवाइस वहाँ इस्तेमाल किया हुआ है और क्यों इस्तेमाल किया गया है? तो पोएटिक डिवाइस जो वहाँ इस्तेमाल हुआ है 1000 एप्पल पिकिंग के लिए, इसका मतलब ये है कि पोइट ने बहुत सारे एप्पल्स देखे दरख्त पर। जब हम किसी जगह भी लोग देखते हैं या चीज़ें देखते हैं तो हम सीधी से कहते हैं कि हज़ारों में थे या लाख में थे, लाख के लगभग। हालांकि ऐसे लोग इतने ज़्यादा लोग या इतनी ज़्यादा चीज़ें वहाँ नहीं होती हैं, लेकिन एक इम्प्रेशन दिया जाता है कि बहुत सारे चीज़ें या बहुत सारे लोग थे। इस पोएटिक डिवाइस को हम हाइपरबोल कहते हैं। इसे हाइपरबोलिक स्टेटमेंट, उर्दू में हम इसे मुबालगा कहते हैं। इट हैज़ बीन यूज्ड टू stress that the apples on the trees were countless. Poet was not in a position to count the actual number of the trees, so he referred to it thousands and thousands. Now question number 5. What does apple picking refer to? Why has the poet given poem this title? अब टाइटल के पास आते हैं। आफ्टर एप्पल पिकिंग, ये एप्पल पिकिंग ही क्यों चुना पोइट ने? इस पोएम को क्यों यही टाइटल दिया गया है? एप्पल पिकिंग रिक्वायर्स अ वेरी हार्ड लेबर एंड यू हैव टू मेंटेन very alertness, and you should be agile, and you should maintain the balance of your mind. If you take the job of apple picking, you should be more sensitive. You should take care that apples should not get spoiled when you are going to pick them up. And it needs a labor, hard labor. It needs a devotion. एक तो आपका इसमें काम चाहिए, जिस्मानी ताकत चाहिए आपको बहुत ही मशक्क़त की ज़रूरत है। दूसरा, हाजिर दिमागी की ज़रूरत है कि मशक्क़त आपकी तब रंग लाएगी जब आप इसमें इंतहाई एहतियात से काम लेंगे, क्योंकि ये आम कोई काम नहीं है एप्पल पिकिंग का। अगर आप एप्पल ऐसे तरीके से पिक करेंगे कि इसमें आप एक बैलेंस मेंटेन रहेंगे, तो आपका ये काम जो है बहुत ही काम ख़राब हो जाएगा। एप्पल्स भी ख़राब हो जाएंगे, या आप खुद भी अपने आप को भी किसी वजह से नुकसान पहुंचाएंगे, क्योंकि आपको लेडर का इस्तेमाल करना है। आप नाजुक और ऊंची ऊंची टहनियों के पास आपको पहुंचना है एप्पल पिक करने के लिए। और ये इसमें क्या है कि ये एक ऐसा एक काम है जो इंसान अंजाम दे सकता है, लेकिन इसमें
हार्ड लेबर की ज़रूरत है, मशक्क़त की ज़रूरत है, एहतियात की ज़रूरत है। एंड एनीथिंग गुड कैन बी अटेन्ड बाय सिंसियर एफर्ट्स एंड हार्ड लेबर। ये इसका आखिर में हम मतलब दे सकते हैं कि जो भी चीज़ कितना भी नाजुक हो, कितना भी मुश्किल हो, लेकिन आप इसको अचीव कर सकते हैं जब आप एफ़र्ट्स लगाएंगे, जब आप सख्त मेहनत करेंगे, जब आप एहतियात से काम लेंगे, हाजिर दिमागी से काम लेंगे। थैंक यू वेरी मच।